के सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते। हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी। अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुट्टुस्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागें, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। But we still have hope in our judiciary higher court that they will prevail justice. Unity in diversity is the beauty of our nation. Each and every citizen of this country has the right to practice their individual belief and individual right. Neither the judiciary nor the government is superior than the Constitution. The Constitution has given the right to life and right to live. It is the duty of judiciary to protect and ensure the right of each and every citizen. We will stand by the students by all means and we will continue our struggle till justice prevails. We appeal all the true citizens of this country to join the victim struggle. I said that the religious hijab is not an essential part of our religion. When the Quran itself says, when the Quran that we follow itself says that hijab is an essential part for our religion. In Surah An-Nur, in Surah Al-Ahzab, they say it's been written about hijab. It's named as khimar and it's written about hijab in that. When the Quran itself says, then why is the court denying this? Why is the court denying the truth? And everyone can see here, like when we filed the petition on January 31st, there was no rule for uniform. There was no particular rule. Uniform was not compulsory. And if any college, compulsorily, says to wear the uniform, then it was illegal. But after we signed the petition, immediately after 6 days, the government has issued one rule that uniform is compulsory. About uniform, it was about Samavastra. The government has brought a new rule. Why is this happening? Like after that itself, and on 8th of February there was a judgment. Judgment was going to take place on 8th of February. At that day itself, all the ABP goons started wearing the saffron shawl. Why did this all happen? Like why is this all happening as per planned? This is very sad to say that we are the citizen of the same country and we have been treated unequal. Then I would just like to say that we'll be fighting and we'll be fighting till we get our rights. We'll be going with all the legal ways in the future and we'll be hoping that our judiciary system in our country, on the constitutional basis, on the constitutional values, we'll be getting our rights as soon as possible. Thank you. हम जो इस हाईकोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते, हम उससे डिसएग्री करते हैं। और आयरलैंड में मोदी सरकार जो है, आयरलैंड की सरकार ने सिखों को टर्बन, मुसलमानों को हिजाब से वेलकम किया। यहाँ क्यों नहीं वेलकम कर रहे आप? अरे अपनॉक्सियस सिचुएशन बीजेपी ने क्रिएट कर दिया। ये शिक्षा हासिल करो, हिजाब करो। पूरा सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटका और तेलंगाना में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के बराबर स्कूल में शिक्षा हासिल कर रही हैं। और मोहतरम जज साहब ने कहा कि पर्दा, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर के 24 नंबर आयत नंबर 30, उसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, अपनी नजरें नीचे रखो। ईमान वाली औरतों के लिए नीची नजरें रखना है, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बेटियों से
औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं, मैं समझता हूं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है क्या? वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है, तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। मजहब एक जरूरी चीज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है। हम असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमेशा अमेंडमेंट आता है संविधान के अंदर। लेकिन मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है। मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है।